Good morning. I am sharing the question number first of exercise 3.1, chapter number 3 of class 10th, linear equation in two variables, pair of linear equations. Just see. So first of all, I want to tell you what's the meaning of this. Pair of means two pairs are there. Two equations. Linear means the exponent or highest power is 1, and in two variables means there are x and y, two variables. Okay, understood? So wait, somebody call as came, no matter it. So understood what's the meaning? Now we are going to do this first question. I am not doing the first and second chapter. Please comment me in comment section if you want first and second chapter too. I'm starting from third. I don't know why, मुझे भी नहीं पता क्यों. So please आप ये समझ लीजिए एक बार. तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. जस्ट सी, अभी मैंने बनाई थी. I am doing this exercise now for you only. So that's why I am making also videos, and I have not done this graphs because instantly in my mind came this idea to make for you. Okay, so I have started this graph. I am not having now, so I will explain it later. I have left the space for you. I will explain you here only. I will purchase the graph book because graphs are very much and I have to explain you every graph. So I think कि मैं एक purchase कर ही लूँगी. Just see, I am telling you, as if you want some history or any other subject videos also, no, please comment me. I will tell you seriously. I am also in 10th class and I am thinking that the concepts which are very clear to me, I will explain you very clearly. मैं आपको इतनी ईजी तरीके से इतने अच्छे से बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हैं. तो प्लीज़ टेल मी, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी चाहिए ना, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी चाहिए मैथ्स का, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. एंड मैंने इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही ईजी तरीका बताया है, आप वैसे कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, डिफरेंट है. सेकेंड एंड थर्ड आर वेरी ईजी. सबसे पहले उन सेकेंड एंड थर्ड की ही वीडियो अपलोड होगी बाद में इसकी. तो पहले देख लेते हैं इसको. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago. First of all, let me tell you, if the words which are written such as ago, before, if these words are used now, then minus sign. And if now, then, or which words are used? Now, then, later, hence. If these types of words are used, then plus sign. मीन्स आगे की बात बतानी है, मीन्स प्लस करना है. अगर बोलती हूँ मैं कि आई सैड दैट टू माई डॉटर दैट 5 I am 50 years. 5 years ago I was 2 of her age. लेट कुछ भी सपोज कर लीजिए आप कि 50 साल पहले 5 years ago, now I am 50 years. 5 years ago I was this age of her. So 5 minus 50 minus 5. Now I am not of 50 years, I am in 10th class. Just I am giving example. So अगर मैं ये देती हूँ तो माइनस. अगर मैं एग्जाम्पल ये देती हूँ कि I was 5 years later I will be this. So 50 plus 5. Okay, 55 I will be and here 45 I will be. Understood? तो इन वर्ड्स का ध्यान रख लेना. इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आते हैं. तो जस्ट सी, आफ्ताब टेल. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रफली करके दिखाती हूँ, फिर क्लियरली जो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर सकते हैं वैसे करके सिखाऊंगी. ठीक है, यही क्वेश्चंस आप सेम अपनी फेयर नोटबुक में भी कर सकते हैं. दीज आर वेरी, मतलब बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ मैं इनको. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर
7 years ago. I was 7 times as old as you were then. मीन्स सबसे पहले आपको देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं. मीन्स कि आपको 2 वेरिएबल्स यहाँ पर चाहिए ही चाहिए. मीन्स वन इज आफ्ताब. आफ्ताब की एज लिख लीजिए आप x ईयर्स एंड उसकी डॉटर की एज लिख लीजिए आप y ईयर्स. ओके, पहले आप 2 वेरिएबल्स को बना लीजिए. उसके बाद सो नाउ what I was telling, somebody has came, so I take a break. Sorry for that inconvenience. Just start at work. So मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि x years and y years. Okay. So now what is written here कि आफ्ताब tells his daughter. आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है, it is visible ना, कि 7 years ago, 7 साल पहले, he was means x minus 7 years पहले. अगो में माइनस का साइन मैंने आपको बता दिया ना, इसको भी ध्यान रखना है साथ के साथ. जस्ट कीप इट इन माइंड, नोट्स में लिख लेना. आई वॉज 7 times as old as you were then. मीन्स कि मेरी बेटी जो है, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज के 7 times इक्वल था. Some silly mistakes which students do, that in the question we have to find out something, means daughter and mother age we have to find out, and what they do, they find the ages but they didn't use their common sense. How? If the two ages we are getting, one is 10 years and another is suppose another we are getting is of 30 years. So what children do, they write that hence the age of the daughter is 30 years and hence the age of the mother is 10 years. Is it possible? How funny they are. Teacher भी हंसने लग जाएगा. Means whatever. So I am telling you this because my mama, means मेरे मामा ने मुझे बताई ये सब silly mistakes. वही बताते हैं मुझे because he is a lecturer of maths. ही हैज़ डन BSc इन, पता नहीं मुझे आगे क्या करा है उन्हें मैथ्स में, तो वो मुझे बताते हैं सिली मिस्टेक्स और मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो ये इस ऐसे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे. उनकी क्लास में बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं देन दे कम टू हिम दैट प्लीज सर एक्सप्लेन दिस. और जो बड़ी बड़ी क्लासेस कॉलेजेस के बच्चे करते हैं ऐसा. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. नाउ ड्यू टू दिस लॉकडाउन आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू. ओके, ताकि और भी बच्चों को समझ में आए. मुझे तो समझ में आ ही जाता है, जो चीज़ें समझ आते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता तो मैं किसी से पूछ लेती हूँ. मीन्स मेरे मामा से पूछ लेती हूँ या फिर टीचर से ही फिर से पूछ लेती हूँ. लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ अभी, जस्ट लिसन. ये है, ठीक है, x minus 7 is equal to 7y. नाउ मुझे अगला डाटा देखो. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब की एज से, x की एज से 3 years नाउ. अगर नाउ यूज हो रहा है तो प्लस का साइन. आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू. उसके बाद वो 3 times एज ओल्ड एज हो जाएगा उसके, है ना, विल बी. रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली. अंडरस्टूड दिस इक्वेशन विच आई हैव रिटन. समझ में आ रही है सबको ये इक्वेशन की मैंने क्या लिखी है एक्चुअल में. इफ समबडी इज नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, प्लीज कमेंट me in comment section. You may ask me. And I think 10th class students are there and they must not ask me questions related to next chapters. Up to 3rd chapter they may ask, because I have also done up to this chapter 3.1 exercise only. I have done to this. If they are having any query related to 1st and 2nd chapter, they may also ask, but don't ask chapters which are next, because I didn't read them also. I have not seen their pages also. So if you will tell me, then I will explain you when the time will come for them. Okay, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट का आप देख सकते हैं कि now just see, I am explaining it again. I don't know in the before video up to where I have explained, because
someone is calling me outside, so I go there. Important that was. So Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you. But then, समझ में आया किसी को कि आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले मैं 7 टाइम्स तुम जितनी थी उतनी एज का था, यानी कि 7 years अगर मैं अगो की बात कर रही हूँ तो x-7 हो जाएगी इसकी एज, और इसकी y-7 हो जाएगी। ठीक है, ये आफ्ताब की है एंड ये डॉटर की है। ठीक है, ये डी। नाउ वो क्या बोल रहा है कि x-7 years का था मैं, है ना। ओ 7 में क्या लिख रही हूँ, ये था मैं। ठीक है, और तुम जब थी y-7 years की, जब तुम मेरे 7 टाइम्स के इक्वल थे। ठीक है, x-7 विल बी इक्वल टू 7y-49। नाउ आप एक टर्म्स को मतलब लाइकली टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, x-7y एंड हेयर इट विल बी -49 +7। ओके, नाउ बन गया ये, इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए, 47, 48, 49 एंड इट विल बी -42 इज इक्वल टू x-7y। डन। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी वो लेटर की बनेगी, वो नाउ की है। अब नाउ का मैंने आपको पहले बताया था in the back side page that what is written here, now then later plus sign, so now we will plus here. Okay, so just see कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, means कि अब इनकी एज होगी x+3, लेटर की है 3 years from now, और इसकी बन जाएगी y+3। ये आफ्ताब की है, ये डॉटर की है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसकी x+ जो 3 years है ये 3 टाइम्स इक्वल हो जाएगी इसकी डॉटर के, इसीलिए x+3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 9। नाउ what will be written here, x plus -3y, x -3y and x -3y is equal to 9 - 3, that will be 6, 6, and it will be x -3y. These are the two equations which are formed. Hence now what you have to do, ये मैं रफली करके दिखा रही हूँ, फाइनली भी करके दिखाऊंगी, वैसे यही लिखना है फाइनल में, सेम चीज़ लिखनी है आपको आफ्ताब से लेकर यहाँ तक। अभी आपको इनकी क्या करनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब आप इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, जैसे कि दिखाइए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। x-7y इज इक्वल टू -42। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वैल्यूज पुट करनी है आपको। वैल्यूज पुट करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि जो बड़ी टर्म है उसको उस साइड लेकर जाना है। -42 विल बिकम +7y, सॉरी -7y। सो ये रहना है, ये करना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेती हूँ। टेबल में 4 टर्म्स बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो देखकर काम कर रहे हैं तो 4 टर्म्स ज़रूर बनाइएगा। वाई, बिकॉज कभी भी ना लाइन जब पूछा जाता है ना एग्जाम में कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या फिर ये ओवरलैपिंग लाइन ग्राफ है या फिर पैरेलल लाइन ग्राफ है या फिर कट करने वाला ग्राफ है, आपस में इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन 4 जब टर्म्स हो जाती हैं, जब क्लियर हो जाता है ये कि कैसा ग्राफ है, ठीक है, 4 टर्म्स बना लिया करो। तो x इज इक्वल टू -42 + 7 × 1 करें, 7 × 2 करते हैं। 7 2 x, y को हमने 2 मारना है, 7 2 14 -42, आंसर विल बी माइनस व्हाट विल बी आवर आंसर, -14, 42 एंड 14 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए एक बार। सब्ट्रैक्ट करने का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हम बिना सब्ट्रैक्शन कर देते तो गलत हो जाता है, एंड गलत करने से बढ़िया आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। ओके, सेम इस तरीके से इसको 7 3 कर लीजिए, 7 2 14, 7 3 21, 42 में से 21 माइनस कर लीजिए,
here will be 1 and here will be 2 means 21 ही बचेगा यहाँ पर 21 1 जा कर लीजिए 42 में से 7 माइनस करेंगे आप तो आपको कितना मिलने वाला है यहाँ पे टर्म 12 में से 3 एंड 12 minus 7 1 2 3 4 5 6 7 and you will get 35 means minus 35 you will get here if you are taking 1 and आप इसको ले सकते हैं 7 14 7 28 4 ले सकते हैं एंड 28 28 लेंगे आप यहाँ पर और इसको आप यहाँ पे 12 करेंगे 3 करेंगे न्यूज़ चल रही है ना बाहर नो प्रॉब्लम 1 2 3 4 you will get here and here you will get 1 means minus 14 you will get and this is the table ये मैंने यहाँ पर रफ वर्क किया इसको मत देखना वैसे ये देखना चाहिए आपको सॉरी मैंने इरेज कर दिया नो प्रॉब्लम आप इसको देख लीजिए जस्ट सी दिस टेबल ये टेबल बन गई है आपको ये टेबल ग्राफिकली एक्सप्रेस करना मैं सिखाऊंगी बाद में सेम इसी तरीके से आपको ये टेबल बनानी है इसकी भी टर्म की भी अगर आप इस टर्म की टेबल खुद बनाएंगे दैट विल बी मच बेटर फॉर यू लेकिन अगर अभी आपको खुद ही बनानी है जब ग्राफिकली वीडियो आएगी ना जब मैं आपको इसकी टेबल दिखा दूंगी बिकॉज जो मैं लिखवा रही हूँ ना ये मैं खुद से लिखवा रही हूँ मैंने कहीं से भी नहीं देखा इसको एंड अगर मैं आपको यही टेबल बता दूंगी कि इसकी भी बता दूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि टेबल कैसे बनानी है अगर आप इसकी टेबल खुद बना के देखेंगे आप देन इट इज़ वेरी गुड तो आप इसकी टेबल आप खुद बना कर देख लीजिए इफ़ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम then you must ask from me in comment section okay thank you and have a nice day